Good morning, student. In our last class, we discussed about histones, little basic points about histones, types of histones, and we also discussed that abundance of histone in eukaryotes, and we also discussed two types of histone: core histone and linker histone. Now we'll extend that topic in this lecture, and we know more about histones, about their structure, their linear structure, and other. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास में हमने हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा था. हिस्टोन्स के प्रकार कितने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में कितने प्रकार के हिस्टोन्स होते हैं, कोर हिस्टोन्स और लिंकर हिस्टोन हमने पढ़े थे. उनके हमने बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे. हमने ये पढ़ा था कि हिस्टोन्स पे कौन सा चार्ज होता है, किस कारण ये चार्ज होता है. आगे हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और हिस्टोन्स की ही हम और उसके स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. So these are the different type and properties of histones. We already discussed this part. Just I want to share this table that histones are of two types: core histone and linker histone. We already discussed that four type of core histones: H2A, H2B, H3, H4, and one linker histone H1. These are the molecular weight given in this table of all the histones, and the percentage of lysine and arginine amino acid, which is the basic uh, the basis of positive charge of histones, right? So students, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इस टेबल में हम आप डिफरेंट टाइप देख सकते हो हिस्टोन्स के. कोर हिस्टोन्स एंड लिंकर हिस्टोन्स, दो प्रकार के हिस्टोन्स होते हैं. कोर हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 और H4, और ये इनके मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हैं इस टेबल में दिए हुए हैं. एंड लिंकर हिस्टोन एक होता है H1. लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड परसेंटेज किस हिस्टोन में कितना होता है वो आप इस टेबल में देख सकते हो. लाइसिन और आर्जिनिन परसेंटेज डिसाइड करता है इसका पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन्स का. ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये लाइसिन और आर्जिनिन इनमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं. So this is the structure of histone octamer, which we'll discuss in detail today in this class. Students, ये आप इसमें देख रहे हो कि हिस्टोन ऑक्टामर की स्ट्रक्चर है जो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. So you can see the first level of structure, then second level of structure, and then complete the histone with DNA in this diagram. If we talk about first level of structure, it means the H3 and H4 histone come together and make a dimer structure, which you can see H3, H4 dimers at first level. And H2A, H2B histones also come closer together and make H2A and H2B dimer, as you can see it in primary level of structure. Then this H3 and H4 dimer makes tetramer. Again, they come closer and make tetramer. Then this H3, H4 tetramer and H2A, H2B dimer come closer and they make histone octamer structure, which is the you can see at the last histone octamer structure in this slide. And at the above, you can see the complete histone with DNA. Right, this histone octamer with DNA, you can see it on the top. So student, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर की संरचना, हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसमें प्राइमरी दो लेवल की स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रही हैं. फर्स्ट लेवल में आप देखते हैं H3 और H4 हिस्टोन मिलकर डायमर बनाते हैं, डायमर संरचना का निर्माण करते हैं. H2A और H2B हिस्टोन आप देख सकते हैं इसमें ये भी डायमर बनाते हैं. H3 और H4 अगेन टेट्रामर का निर्माण करते हैं, और ये H3 और H4 टेट्रामर
और H2A H2B डायमर मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं एंड में हिस्टोन ऑक्टामर। आप इस स्लाइड में टॉप पे कॉर्नर पे देख सकते हैं कंप्लीट हिस्टोन विद डीएनए। जब इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल जुड़ता है, इसको ये कंप्लीट हिस्टोन बनता है। सो नाउ हम अब डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, कैसे बनती है, एंड इसमें जो प्रोटीन कोर्स होते हैं उनकी कैसे स्ट्रक्चर होती है, राइट। So student, now we'll discuss about the detail about the structure, that this is the disc shape structure, disc shape protein core, and they make a nucleosome which is disc shape. Okay. In this structure you can see the four histones in as a linear molecules on in a diagram on top, and in B diagram you can see the H2A H2B dimer structure, H3H4 tetramer, which is the basic unit to make nucleosome, right. So बच्चों, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हिस्टोन्स, चारों हिस्टोन्स का लीनियर मॉलिक्यूल आप ए डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें एन टर्मिनल टेल दिखाई हुई है, हिस्टोन फोल्ड्स दिखाए हुए हैं और चारों हिस्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके बी डायग्राम में आप अगेन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था उसको आप अगेन देख सकते हैं, ये कैसे फोल्ड होते हैं H2A H2B, एंड कैसे डायमर बनता है, H3H4 कैसे फोल्ड होते हैं और कैसे इनका टेट्रामर बनता है। ये डायग्राम हमने जेम्स डी वॉटसन से लिया है। ये डायग्राम आप उस बुक में भी देख सकते हैं, उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। सो आई टेल यू मोर अबाउट हिस्टोन्स। So students, the protein core of nucleosome is a disc-shaped structure that assembles in an order fashion only in the presence of DNA, as we already seen it in last slide, right, on the top. Without DNA, the core histone form intermediate assembly in the solution. A conserved region found in every core histone, called the histone fold domain, mediates the assembly of these histone only intermediates. As you can see in this diagram, all intermediate. So student, आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, जो भी अभी मैं आपको भी मैंने बताया, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो न्यूक्लियोसोम एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये न्यूक्लियोसोम मुख्य रूप से तभी असेंबल होते हैं जब डीएनए उपस्थित होता है। सो बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम के प्रोटीन कोर्स हैं वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये तभी असेंबल होते हैं जब डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के बिना ये जो कोर हिस्टोन्स है ये एक इंटरमीडिएट असेंबली बनाते हैं। इंटरमीडिएट असेंबली मतलब ये जो H2A H2B डायमर बना, H3H4 टेट्रामर जो बना है, ये हम देख सकते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट असेंबली कहते हैं। सभी प्रत्येक हिस्टोन में एक कंजर्व रीजन पाया जाता है जिसको हम हिस्टोन फोल्ड डोमेन कहते हैं। इस रीजन से ही ये असेंबली मीडिएट होती है। ये जो इंटरमीडिएट असेंबली है उसको ये कंजर्व रीजन क्या करता है, मीडिएट करता है, उसे ये निर्देश देता है, उसको ये डायरेक्ट करता है, ठीक है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, द हिस्टोन फोल्ड इज कंपोज्ड ऑफ three of alpha helical region separated by two short unstructured loop. In each case, the histone fold mediates the formation of head to tail, right? Head to tail heterodimer of specific pair of histones. H3 and H4 histones first form heterodimers and then come together to form tetramer with two molecules each of H3 and H4. In contrast, H2A and H2B form heterodimer in the solution but not tetramers.
सो स्टूडेंट दीज हिस्टोन फोल्ड, ये जो हिस्टोन फोल्ड है बेसिकली 3 अल्फा हेलिकल रीजन्स इसमें हम देख सकते हैं। हम इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें हमें एक तो और ये जो 2 शॉर्ट लूप्स हैं उस वो इन्हें अलग करती है अल्फा हेलिकल रीजन्स को। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आराम से आपको हिस्टोन फोल्ड का रीजन दिखाई दे रहा है जो 3 अल्फा हेलिकल रीजन में बटा हुआ है और 2 शॉर्ट जो फोल्ड्स हैं, छोटी फोल्ड्स, इन्हें अलग कर रही हैं तीनों को। और हम देख सकते हैं इसमें जो हिस्टोन फोल्ड है उसमें एक तो हेड का फॉर्मेशन होता है और टेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पेसिफिक हिस्टोन्स है ये पेयरिंग करते हैं स्पेसिफिक तरीके से, विशिष्ट तरीके से, मतलब H3 H4 के साथ पेयरिंग करके हेट्रोडाइमर बनाता है और ये साथ में अगेन टेट्रामर का निर्माण करते हैं, जैसा हमने लास्ट स्लाइड पे भी देखा था। और H2A और H2B हेट्रोडाइमर बनाते हैं परंतु ये टेट्रामर का निर्माण नहीं करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो 4 हिस्टोन्स का जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, लीनियर मॉलिक्यूल जो दिए हुए हैं, इसमें हिस्टोन फोल्ड जो मोटिफ है ये अल्फा हेलिकल्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं सिलेंड्रिकल रूप में। और हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं विद अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स। और हम इसमें बी डायग्राम में देख सकते हैं जो हेलिकल रीजन है हिस्टोन्स के H2A H2B के, वो आपस में पास पास आते हैं और ये डायमर का निर्माण करते हैं। और H3 और H4 में भी सिमिलर इंट्रैक्शन होता है जैसे H3 और H2 में होता है। उसके बाद H3 व H4 दोबारा उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और टेट्रामर का निर्माण करते हैं। आप इसमें आराम से देख सकते हैं। The assembly of nucleosome involve the ordered association of these building blocks with DNA, right? And in this assembly, the first H3H4 tetramer bind to DNA, then two H2A and H2B dimer join the H3 and H4 DNA complex to form a final nucleosome, as we see in last slide. Final nucleosome, which was complete structure, histones assembled with DNA, right? सो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोसोम की असेंबली है इसमें ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हिस्टोन्स होते हैं और इनके साथ डीएनए ज्वाइन करता है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में कंप्लीट असेंबली देखी थी न्यूक्लियोसोम की, 4 हिस्टोन्स थे और उसके चारों तरफ डीएनए थे। सो ये जो असेंबली होती है ये एसोसिएशन होता है, ये बिल्डिंग दीज हिस्टोन बिल्डिंग ब्लॉक्स का डीएनए के साथ होता है। इसमें सबसे पहले H3 H4 जो टेट्रामर है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है। देन जो H2A एंड H2B डाइमर है वो H3 H4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और डीएनए के साथ डीएनए इस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करता है और इससे फाइनल न्यूक्लियोसोम की संरचना का निर्माण होता है, जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। So now students, further the core histones can have an N-terminal extension called the tail, right? We can see it N-terminal extension and it is named as tail because it lacks a defined structure and is accessible within the intact nucleosome. This accessibility can be detected by treatment of nucleosome with the protease trypsin. The treatment of nucleosome with the trypsin rapidly removes the accessible N-terminal tail of the histone, but cannot cleave the tightly packed histone fold regions. The exposed N-terminal tail are not required for the association of DNA with the histone octamer, as the DNA is still tightly associated with the nucleosome after protease treatment. Instead, the tail are the site of extensive modifications that alter the function of individual nucleosomes. These modifications which I am talking is, it includes phosphorylation, acetylation and methylation of serine and lysine residues. So student,
स्टूडेंट बेसिकली जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं एंड टर्मिनल चेन, ये 4 हिस्टोन्स का एक एक्सटेंशन पार्ट है, इसका पीछे बड़ा हुआ निकला हुआ पार्ट है जिसको हम एंड टर्मिनल चेन या टेल कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती, इसकी कोई संरचना नहीं होती, परंतु ये न्यूक्लियोसोम में एसेसिबल है। एसेसिबल मतलब इसका हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, अब जो इसकी हस्तक्षेप है, इसकी एसेसिबिलिटी है, वो क्या है, इसको हम प्रोटीएस ट्रिप्सिन का अगर न्यूक्लियोसोम के साथ हम ट्रीटमेंट उसको ट्रीट करें न्यूक्लियोसोम को, तो हमें पता लगता है अगर हम न्यूक्लियोसोम को ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट करते हैं, इसके ट्रिप्सिन को से ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम देखते हैं कि एंड टर्मिनल टेल जो है हिस्टोन की वो रिमूव हो जाती है, परंतु जो टाइटली पैक्ड हिस्टोन 4 रीजन से वो रिमूव नहीं होती। तो ये जो बाहर निकली हुई एक्सपोज एंड टर्मिनल टेल है, इसके रिमूव होने के बाद भी जो डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर का एसोसिएशन है वो बरकरार रहता है। टाइटली डीएनए टाइटली एसोसिएटेड रहता है हिस्टोन से प्रोटीएस ट्रीटमेंट के बाद भी। बट हमें इस ट्रीटमेंट के बाद हमें पता चलता है कि जो इस टेल का जो फंक्शन था, ये टेल एक साइट प्रोवाइड करती है विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस के लिए। हिस्टोन्स के फंक्शंस को ये ऑल्टर करती है। हिस्टोन्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो इस चेन के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं। ये फंक्शन जैसे फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, मुख्य रूप से सीरीन और लाइसिन रेसिड्यू का, ये सारे इसी चेन से एक्सेसिबल होते हैं। इसलिए इस चेन का भी एक रोल होता है हिस्टोन की संरचना। So student, now we discuss about how nucleosome core particles can be released, or we can say it that microfocal nucleus and the DNA associated with the nucleosome. We discuss about this part that how nucleosome were first treated with this nucleus, right? So this nucleosome were first purified by treating chromosome with a sequence non-specific nuclease called microfocal nucleus. The ability of this enzyme to cleave DNA is primarily governed by the accessibility of the DNA. Thus, microfocal nuclease cleaves protein-free DNA sequences rapidly and protein-associated DNA sequences poorly. The limited treatment of chromosome with this enzyme results in a nuclease-resistant population of DNA molecules that are associated with histones, right? And now these DNA molecules are between 160 to 220 base pair in the length and are associated with 2 copies of histones H2A, H2B, H3 and H4. So we can say on average these particles include the DNA tightly associated with nucleosome as well as 1 unit of linker DNA. More extensive microfocal nucleus treatment degrade all the linker DNA, and the remaining minimal nucleosome include only 147 base pair of DNA and is called nucleosome core particles. So student, अभी हम ये इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स हैं वो माइक्रोफोकल न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं। पहले हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है जब हम हिस्टोन्स हमने स्टार्ट किए थे तब। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम न्यूक्लियोसोम का लाइट डाइजेशन कराते हैं इस न्यूक्लियस से, स्पेसिफिक ये न्यूक्लियस है माइक्रोफोकल न्यूक्लियस, तो हम देख सकते हैं इसमें आप नीचे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख सकते हो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल्स है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको डिटेल में एक बार फिर समझाती हूँ। जो ये न्यूक्लियोसोम्स हैं ये सबसे पहले जब इनका ट्रीटमेंट किया था वो सबसे पहले न्यूक्लियस माइक्रोफोकल से किया था। ये एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियोसोम को क्रोमोसोम से सबसे पहले प्योरीफाई इसी स्पेसिफिक
ये सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियस, माइक्रोप्रोपल न्यूक्लियस यूज करके सबसे पहले प्योरीफाई किया था। इस एंजाइम की एक एबिलिटी है कि ये डीएनए को क्लीव करता है प्राइमरीली, मुख्य रूप से उसी डीएनए को क्लीव करता है जो प्रोटीन फ्री डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, और जो प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें उन पर इसका जो क्लीवेज होता है वो बहुत पुअरली होता है, उनको ये आसानी से क्लीव नहीं कर पाते। अगर हम क्रोमोसोम्स को इस एंजाइम के साथ कुछ लिमिटेड ट्रीटमेंट दें तो जो न्यूक्लियस रेजिस्टेंट पॉपुलेशन है डीएनए मॉलिक्यूल की वो हमें मिलती है। मतलब ये जो जो ऐसे पार्ट हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हिस्टोन्स के साथ नहीं जुड़े हुए, यानी प्रोटीन फ्री जो डीएनए का भाग है उसको ये क्लीव करता है, वहां पे ये कट करता है। इसके बाद जो हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मुख्य रूप से 160 से 220 बेस पेयर की लेंथ के हमें मिलते हैं, और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स दो कॉपीज जो हैं हिस्टोन्स की उनके साथ हमें जुड़े हुए मिलते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो मुख्य रूप से ये जो एंजाइम, ये जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं डीएनए के बहुत टाइटली एसोसिएटेड होते हैं न्यूक्लियोसोम से, और इसमें हमें लिंकर डीएनए की यूनिट भी मिलती है। तो अगर हम इस माइक्रोकोकल न्यूक्लियस को दोबारा इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो जितने भी लिंकर डीएनए हैं वो सब डिग्रेड हो जाते हैं, और जो हमें रिमेनिंग न्यूक्लियोसोम्स मिलते हैं वो इंक्लूड करते हैं लगभग 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो जो एंड में बचते हैं ना न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स बचते हैं जिनका साइज लगभग 147 बेस पेयर होता है। तो अगर हम इसको देखें इस तरह हम इसको दोबारा अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऐसे डीएनए को क्लीव करता है जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। अगर हम सबसे पहले जब हम ये न्यूक्लियोसोम्स को क्रोमोसोम से प्योरीफाई किया था तो इसी डीएनए का ट्रीटमेंट दिया गया था। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियोसोम साथ में डीएनए, मतलब होल न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है हिस्टोन एंड कवर्ड बाय डीएनए। अगर हम इस न्यूक्लियस से इसको लाइट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये उस पार्ट को रिमूव करता है जहाँ पे प्रोटीन्स नहीं है। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे इस डायग्राम में ऐसे पार्ट रिमूव हो गए हैं जहाँ इसने वहाँ क्लीव किया जहाँ प्रोटीन नहीं है। फिर अगर हम इसका और ज़्यादा डाइजेशन कराते हैं तो ये लिंकर डीएनए को भी रिमूव कर देता है, जो लिंकर डीएनए होता है उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो लिंकर डीएनए भी जब रिमूव हो जाता है तो एंड में क्या बचता है, ओनली 4 न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने सबसे पहले न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स को रिलीज किया था साइंटिस्ट ने, सबसे पहले से ऑब्जर्व किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये सारा जो जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आप ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय जेम्स डी वॉटसन उससे आप रेफर कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हिस्टोन्स की डिटेल में। ओके, थैंक यू।